वी हैव सीन द मीनिंग ऑफ द प्रोविज़न। आयोजन का अर्थ हमने देख लिया है। नाउ वी विल सी द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द प्रोविज़न। प्रोविज़न आयोजन की अब हम विशेषताएं देखेंगे। So the first characteristic of the provision is that it is always kept aside out of the profit for the non-losses only. Non-losses are the losses which indeed gonna happen in the business. For example, the expenses on the depreciation. When the furniture will be used in the business, it is obvious that the value of the furniture will be reduced. Similarly, it is also obvious that if the business is selling goods on the credit basis regularly, then there must be some customer who may not pay the business on the time. So that amount may not be recoverable by the business. So that the provision are created for the known liabilities or known losses only, which are obviously gonna happen in the business. Second characteristic of provision is that it is always considered as an expense, and therefore in the profit and loss account it is written on the debit side, because on the debit side of the profit and loss account all the expenses are written. Third characteristic of provision is that the amount of the provision is used for the purpose for which it is created. It is not used for any other purpose or for making any investment in the external securities. One of the characteristic, as we have discussed earlier, is that the provision is necessary to be maintained by the business even if the business is suffering losses. So it doesn't matter whether the business is going in the profit or suffering losses, arrangement of provision is necessary. One of the characteristic of provision is that the amount of provision is also called as the specific reserve because it is used for the specific purpose. The provision is then deducted from the related assets in the balance sheet. So one of the characteristic of provision is that the amount of the provision is always uncertain. I have given you the example of this characteristic in the previous video. So refer the previous video to see the example. If the amount of the provision is already known, then it won't be called as provision, then it is called as liability only. Another characteristic of the provision is that the amount kept aside to meet the known losses should not be more than the required. If more amount are kept than required amount, then the excess amount will be called as the reserve. तो आयोजन की विशेषताओं को देखते हैं। तो आयोजन की पहली विशेषता ये है कि आयोजन बनाया जाता है तो वो उन हानियों के लिए बनाया जाता है जो निश्चित रूप से व्यवसाय में भविष्य में होने वाली है। कुछ हानियाँ निश्चित होती है जो कि व्यवसाय में आगे चल के होगी, ये व्यवसाय को पता होता है, ठीक है। जैसे कि देनदारों को अगर वो उधार में माल बेच रहा है तो ये निश्चित है कि उसमें से कुछ देनदार पैसा नहीं देंगे। अगर वो फर्नीचर प्रयोग में ला रहा है व्यवसाय तो ये निश्चित है कि वो फर्नीचर की वैल्यू जो है, मूल्य जो है वो साल पे साल घटता जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, मूल्यह्रास के लिए आयोजन बना सकते हैं। ऐसे देनदारों के लिए जो कि पैसा नहीं देने वाले हैं, उनसे जो हमको हानि की संभावना है, उसके लिए हम यहाँ पे आयोजन बना सकते हैं। दूसरी विशेषता आयोजन की ये है कि आयोजन की जो राशि होती है वो अनिश्चित होती है। उसको हम सिर्फ प्रेडिक्ट कर सकते हैं, उसका जो है अंदाज़ा लगाया जा सकता है, वो निश्चित नहीं होती है। क्योंकि अगर उसकी राशि निश्चित होती तो वो आयोजन ना कहला के एक दायित्व कहलाता। तीसरी विशेषता आयोजन की ये है कि ये हमेशा लाभ हानि खाते के डेबिट पक्ष में नाम पक्ष में लिखा जाता है। डेबिट पक्ष में लाभ हानि खाते के ये क्यों लिखा जाता है, क्योंकि लाभ हानि खाते के डेबिट पक्ष में नाम पक्ष में ही सारे खर्चे लिखे जाते हैं। खर्चों के साथ साथ सारी हानियाँ भी लाभ हानि खाते के डेबिट पक्ष में लिखी जाती है और आयोजन जो होता है उसकी राशि आगामी भविष्य में होने वाली जो हानि होती है उसके लिए अलग से रखी जाती है। तो ये एक तरह की संभावित हानि होती है, इसलिए इसे भी लाभ हानि खाते के डेबिट पक्ष में लिखा जाता है। एक और विशेषता आयोजन की देखते हैं। तो एक विशेषता आयोजन की ये है भी है कि आयोजन की राशि जो रखी गई है अलग से निकाल के, उस राशि का प्रयोग
उससे संबंधित हानि के लिए ही होगा। उस राशि का प्रयोग आप किसी और चीज़ में या किसी और गतिविधियों में नहीं कर सकते हैं, जैसे कि उस राशि से आप कोई विनियोग नहीं कर सकते हैं, बिजनेस किसी भी बाहरी प्रतिभूतियों में विनियोग नहीं कर सकता है। उसका उपयोग सिर्फ उसी चीज़ के लिए होगा जिसके लिए वो बनाई गई है। इसके सिवा जो विशेषता है आयोजन की वो एक ये भी है कि आयोजन की जो राशि होती है उसको हम जो भी संबंधित संपत्ति होती है जिसके लिए आयोजन बनाया जा रहा है उसमें से उसको घटाया जाता है चिट्ठे के अंदर, मतलब बैलेंस शीट के अंदर संपत्ति को जब दर्शाया जाता है तब उसमें से आयोजन की जो राशि होती है उसको घटा दिया जाता है, ताकि संपत्ति का वास्तविक मूल्य जो है वो चिट्ठे में दर्शाया जा सके। आयोजन की राशि कभी भी आवश्यकता से अधिक नहीं होनी चाहिए। एक एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ दे दूँ, मान लीजिए कि देनदार जो है 10,000 के हैं, इसमें से 2,000 के देनदारों के डूबने की संभावना है, लेकिन आप जो है आयोजन की राशि 11,000 रख देते हैं, तो ये तो मुमकिन ही नहीं है। जब 10,000 के देनदार है तो नुकसान अगर ज़्यादा से ज़्यादा हो भी गया तो 10,000 तक का होगा, उससे ज़्यादा तो नहीं हो सकता। और पहली बात तो 10,000 तक के देनदार पैसा ना दे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आवश्यकता से अधिक आपने आयोजन की राशि रख ली तो वो आयोजन नहीं कहलाएगा। अगर राशि ज़्यादा रखी है तो ज़्यादा राशि जो है वो एक तरह का संचय कहलाएगी, फिर वो आयोजन नहीं कहलाएगी, ठीक है। तो इस जो है आयोजन उसको तो आप एक नुकसान के तौर पे लिख सकते हैं लाभ हानि खाते के रूप में, पर संचय को आप नुकसान के तौर पे नहीं लिख सकते हैं। अब आयोजन जो है उसकी राशि हमेशा अनिश्चित होती है, ये आपको पता होगा कि हमें ये तो पता है कि आगे जाके क्या नुकसान होने की संभावना है, लेकिन कितना नुकसान होने की संभावना है ये नहीं पता होता है किसी भी व्यवसाय को, इसलिए उसकी राशि जो है उसका एक अंदाज़ा लगाया जाता है, वो अनिश्चित होती है। आयोजन का जो लेखांकन करना जो है वो भी वैधानिक रूप से अनिवार्य है। व्यवसाय को हानि हो या लाभ हो, हर केस में जो है आयोजन बनाना अनिवार्य है। तो हमने आयोजन की विशेषताएं देख ली। वी हैव सीन द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रोविजन। नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक।